میں اپنے انتہائی محترم پریس کے دوستوں کو، کراچی کے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے ہر وقت ہر دور میں، خاص طور سے گزشتہ جو 17 سال کے اندر، پھر اس کے بعد جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جب فارم ہوا، اس وقت سے آپ لوگ ہماری جتنی بھی خبریں آپ کے توسط سے عوام تک پہنچ رہی ہیں، اور گریجولی اس بات کا جو ہے نا تعین ہو چکا ہے کہ جی سندھ کے اندر جو اس وقت اپوزیشن کا جو سارا امپیکٹ ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے آ رہا ہے، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور اس کے جتنے بھی باقی اتحادی بھی ہیں، وہ لوگ سب مل کے ہم اس فستائیت کو جو کہ گزشتہ کم از کم پچھلے ایک سال سے تو جو ہے نا وہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ مرزا خان جتوئی صاحب کا جو یہ کرنٹ کیس ہے، اس کے بارے میں نے کل سنی، ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی غالباً لا منسٹر صاحب کی، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر جتنی دروغ گوئی کی گئی ہے وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مطلب ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے بردبار شخص کو، جو کہ ساری زندگی جن کے خاندان نے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ سندھ کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ پوری دنیا پہ آشکار ہیں، پورے پاکستان پہ آشکار ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ایک بردباری کی اور ایک محبت کی سیاست کی ہے۔ اختلاف بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، چاہے مرزا خان ہوں یا ان کے والد ہوں یا ان کے بڑے ہوں، ان سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات پورے سندھ کے اندر اس وقت طے ہے کہ وہ فیملی جو ہے انہوں نے ایک بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ایک بھرپور انداز میں بردباری کی ایک سیاست کی ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، ہم سب جو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کو آگے بڑھایا گیا تو آنے والے دنوں میں سندھ کے اندر جو اس کا ریئیکشن ہونے جا رہا ہے وہ غالباً شاید حکمران اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اس وقت، اگر جو میں تھوڑی سی جو ڈیٹیلز جو کیس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ایک ایف آئی آر کٹی، ایک مرڈر ہوا الیکشن کے دوران، بوگس ایف آئی آر ہے جس کے اندر کوئی ذرا سا بھی تعلق مرزا خان سے نہیں بنتا اس ایف آئی آر کا، اور اس کو جو ہے نا بنیاد بنا کے جو ہے ان پہ یہ کیس ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں گئے، پہلے انہوں نے اپنی بیل کرائی، پھر ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ آج کے بعد مرزا خان کے اوپر کوئی یا ان کی فیملی کے اوپر کوئی کیس درج نہیں ہوگا جب تک آپ ہائی کورٹ کی پرمیشن نہیں لیتے۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، اور اب گزشتہ دنوں میں پہلی دفعہ ہائی کورٹ کی پرمیشن کس طرح لی گئی محمد دیرو کا کیس ڈالنے کے لیے۔ محمد دیرو پولیس اسٹیشن پہ دوسرا کیس درج ہوا، اور وہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کو استعمال کیا، کہ جس کے بارے میں ہم بالکل وضاحت سے جی ڈی اپنی سٹینڈ دے چکی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس ایوان کو، اس سسٹم کو، اور یہ جو انتظام ہے، کسی بھی طور پہ جو ہے نا ان کو عوام کا یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کرتے۔ دوسری، جب جو محمد دیرو پولیس اسٹیشن پہ جو کیس دوسرا فائل ہوا، وہ جا کے انہوں نے آئینی بینچ سے اس کی پرمیشن لی پولیس نے کہ یہ ہم یہ کیس درج کرنے جا رہے ہیں، اور اب یہ اس بات سامنے ہے کہ بغیر ہائی کورٹ کی پرمیشن کے 2 مزید کیس، کرائم نمبر 10/2025 6 فروری کو ڈوکری پولیس اسٹیشن پہ، اور باڈے پولیس اسٹیشن پہ 9/2025 4 فروری کو درج ہوئے ہیں، اور اس دوران مرزا خان سندھ میں موجود بھی نہیں تھے، وہ اپنی کسی کام سے لاہور اور اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے اور جس انداز میں اب ان کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ایسے شخص کو جو کہ وفاقی وزیر رہا ہو، جن کی ایک اپنے علاقے میں ریپوٹیشن ہے، ان کو آپ ہتھکڑیاں پہنا کے کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ آپ عوام الناس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زور سے، زبردستی سے اس سارے عمل کو جو چل رہا ہے، جو تحریک چل رہی ہے، اب تحرک ہے اس وقت سندھ کے اندر اس وقت کینالوں کے مسئلے پہ، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ، اور کرپشن کے مسئلے پہ موجودہ جو یہ نظام ہے، جو انتظام ہے، فستائیت کا جو گزشتہ 17 سال سے عزتداری کی شکل میں ہمارے پہ نازل ہو چکا ہے، اس کے خلاف سندھ کی عوام کھڑی ہو چکی ہے۔
सेव इंडस रिवर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे कैनाल्स के ऊपर जो हमारी जदोजहद है, उसके अंदर सिर्फ GDA नहीं बल्कि तमाम वो जमातें जो कि सिंध का दर्द रखती हैं वो उसमें शामिल हैं। और हम किसी भी सूरत में ये कैनाल की जो कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये सारा का सारा जो इस तनाजुर में, जिस तनाजुर में मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए मुर्तज़ा जतोई साहब के ऊपर ज़रदारी साहब कोई ज़ाती अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या उनके जो लोग उनके साथ हैं वो गुस्सा निकाल रहे हैं, वरना किसी भी तरह पे जो है कोई केस इस वक्त उनके ऊपर नहीं बनता। और हम ये देख रहे हैं हम आगे कि किस तरह का जो है आगे हमारे इस सारे अमल के अंदर रिएक्शन आता है। और GDA बिल्कुल किसी भी तौर पे खामोश नहीं है। पहले दिन जैसे ये मामला हुआ, हम तमाम लोग, ये रियाज चांडो साहब हमारे बैठे हैं GSN महाज की तरफ से, लेकिन वो हमारे साथ हैं इस अमल में, अपने हमारे जैन शाह साहब, हमारे अपने मौजम भाई साहब, हम लोग गए वहाँ पहुँचे। मैंने साईं की उनकी फैमिली से बात भी करवाई, यूनुस साईं से, और हमने बिल्कुल उनको ये बात अश्योर की कि हम हर सूरत में GDA की पूरी क़यादत, पीर साहब पगाड़ा समेत, हम खड़े हैं मुर्तज़ा खान जतोई के पीछे। किसी भी सूरत में उन पर कोई भी इस किस्म की हमें फिक्र भी है उनकी, बिकॉज उनकी हेल्थ आज इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप उनको इस तरह पकड़ के और जाकर उनको ज़मीन पे बिठाएं, उनको हथकड़ियाँ लगाएं और उनको जो है ना आप एक रात के अंदर आप नौशर फिरोज से निकाल के आप नारा जेल उनको पहुँचा दें। उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती। 6 महीने पहले उनको स्टेंट पड़े हैं, उनके दिल के अंदर, शरियानों के अंदर स्टेंट पड़े हैं। आप ऐसे शख्स को जो कि जिसकी अपनी एक हैसियत है, जिसकी अपनी एक शराफत की सियासत है, उसके साथ इस किस्म की आप ट्रीटमेंट करेंगे? कोई भी इदारा, बुलंद से बुलंद इदारा अगर कोई इस किस्म की जब वो ट्रीटमेंट करता है तो हम तो हर सूरत में उसकी जो मजम्मत भी करते हैं। और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ जारी रहती है तो फिर हम ऑलरेडी हम सड़कों पे, ये नहीं कि हम नहीं है, तो फिर जो एहतजाज होगा वो फिर आपको नज़र भी आएगा। मेरी नज़र में हम फिर भी ये तवक्को करते हैं कि कोर्ट्स हैं, बल्कि इंसानियत खुद है। भाई क्या नॉन बेलेबल वारंट, आप हज़ारों नॉन बेलेबल वारंट डकैतों के ऊपर हैं जो पकड़े जाते हैं, आप उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुर्तज़ा जतोई कोई डकैत थे कि उन्हीं के ऊपर आपने वो नॉन बेलेबल वारंट जो कि आपने मैनिपुलेट करके हासिल किया है, उसमें मैं फिर किसी वक्त बात करूंगा, आपने मैनिपुलेट करके वो नॉन बेलेबल वारंट आपने हासिल किया। और हज़ारों नॉन बेलेबल वारंट है, उसमें तो कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी पे ज़रूर कार्रवाई होनी थी। और फिर ये कि आप उनको अंदर रखने के लिए मजीद केस उन पर बना रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं। डोकरी और बाडरा के FIR से मुर्तज़ा खान जतोई का क्या ताल्लुक है? तो मैं इस बात की मजम्मत भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बन रही है। और ये मैं कह सकता हूँ किसी भी सूरत में GDA की लीडरशिप मुर्तज़ा खान जतोई साहब को किसी तौर पे अकेला नहीं छोड़ेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब GDA के जितने मेंबर्स हैं, इस एक्ट को हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सियासी केसेस हैं और सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत बनाए जा रहे हैं। और वैसे ही आपने एक जिस तरह की इलेक्शंस हुई वो आपके सामने हैं, और उन इलेक्शंस की धांधली जिसके लिए मैं टोटली इलेक्शन कमीशन को अक्यूज़ करती हूँ और कहती हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की है। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है और उसके बाद अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट से आप क्या तवक्को रखते हैं? तो पीका जैसे लेजिस्लेशन और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक अनरिप्रेजेंटेटिव असेंबलियों से ही पास हो सकते थे। रिप्रेजेंटेटिव लोग जो आवाम के अकाउंटेबल हैं, जो आवाम को जवाबदेह हैं, वो कभी भी इस किस्म की लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकते। आज आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हर इदारे को गैग किया गया है, आज मीडिया को भी गैग किया गया है, लेकिन मैं आप सबसे तवक्को रखती हूँ
क्योंकि जमहूरियत के चौथे पिलर आप हैं कि जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट का हाल किया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ इन्होंने जुडिशरी के साथ किया है, वो मकसद ही ये थे कि किसी तरह भी यहाँ पे लोगों को इंसाफ ना मिल सके। वरना अगर जुडिशल रिफॉर्म्स करने थे तो लोअर कोर्ट में करने थे, जहाँ गरीब लोगों को जाना पड़ता है। आए दिन वो जिस परेशानी का शिकार हैं कि वो आप सबके सामने हैं। यकीनन आपके अपने कितने ऐसे मैटर्स होंगे जो लोअर कोर्ट्स में, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। इसी तरह ये ATC और ये सारे जो मामले हैं, इसमें आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पे आप चाहे ड्रग केसेस बना दें, जिसके ऊपर चाहे आप मर्डर केसेस बना दें, एक ही वक्त में 4-4 जगह आप FIR कटवा दें। और यही सब कुछ है कि जिसके लिए कि उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम सब उनके साथ, जरदोई साहब के साथ शामिल हैं कि मेरा इनको एक मशवरा होगा कि आज जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, जो सूरत हाल बन रही है, जो चैलेंजेस खास तौर पे सिंध में जो अंदर लावा उबल रहा है, उसको देखें। आज अगर आप एक ही अखबार में देख लें तो अगर मुर्तज़ा खान की हवाले से खबर है तो उसके ऊपर ये लिखा है कि लाड़काना में आज शटर डाउन स्ट्राइक है। और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जिस तरह का क्राइम और मर्डर हुए हैं, 2 माइनॉरिटी के लोग मारे गए और आप चौथे तीसरे जख्मी हैं। और इस तरह बेतहाशा जिस तरह लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आज आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुल्क छोड़ के जा रही है। आप अपनी माइनॉरिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। आप कराची जैसे शहर में रोज़ाना आप जो इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि एक आते हैं ट्रैक्टर या बुलडोज़र्स या जो भी ये बड़े टैंकर्स के आए दिन आपके लोग शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पिस रहा है और जिस तरह का सूरत हाल बन रही है, तो आप तो एक छोटा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है उसको सियासी और लासानी और इन चीज़ों में न करें। ये टोटली गवर्नेंस का है। आप ना कराची को इंसाफ दे सकें, ना आप लाड़काने को इंसाफ दे सकें, क्योंकि लाड़काना में अगर माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं कर सके। तो मेरा बस आपसे ये है कि खुदारा अगर करना है, जिस तरह के भी आप आ गए हैं पार्लियामेंट में, जिस तरह की भी हुकूमत बना ली है, कम से कम गवर्नेंस पे जोर दें, एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दें, रादर देन कि आप पॉलिटिकल हरासमेंट और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे इस वक्त आप जोर डाल रहे हैं और नाजायज गलत केसेस कर रहे हैं। इसे हम सब स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। आराम से सही ठीक थी। कैमरा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहता हूँ कि हर मुल्क में हर जगह अपोजिशन को छोड़ दिया जाता है ताकि हुकूमत पे तनकीद करे और उस तनकीद का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने अंदर दुरुस्तगी करे अगर कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, मेरे सियासी कैरियर के अंदर ऐसी गलाजत, इस तरह की सियासी दहशतगर्दी, इस तरह की विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाइयाँ मैंने नहीं देखी। लेकिन ये बजाय इसके कि कुछ चंद लोग रह गए, बाकियों को तो आपने जो कुछ करना करा के अपने हुकूमत में शामिल कर लिया है। कुछ लोग रहते हैं उनको भी आप हथकड़ियाँ लगा के अब मुर्तज़ा खान जैसे आदमी को आप हैंडकफ करते हैं। ये हुकूमत है जो प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है, प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई का बेटा है। आप उसको हथकड़ी लगा के को भाग जाएगा। और आपने इंतहा ये की है कि आज मेरी मसरूर खान से भी बात हुई है, आकिब खान से भी, उनकी फैमिली वहाँ गई है नारा जेल मुलाकात करने के लिए, तो उनको मुलाकात नहीं करने दी गई।
یہ کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ لیکن آخر کب تک یہ رہے گا؟ اور میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور زرداری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جناب عالی، اس سندھ میں ہم سب کو رہنا ہے، اس خطے سے ہمیں کسی کو کوئی بھاگ نہیں جائے گا، سب کو رہنا ہے، تو وہ کرو جو کل برداشت کر سکو، ایسے کام نہ کرو جو برداشت نہ کر سکو۔ ہمارے جو ایشوز ہیں، کینال کا ایشو ہے سندھ کا، میں آپ کو یہ بھی کراچی والے دوستوں کو بھی میں یہ گزارش کر دوں، مؤدبانہ گزارش کر دوں، میرے بھائی اگر یہ 6 کینال نکلے تو ہم تو سوکھی جائیں گے، کراچی کو بھی پانی نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ کے بی فیڈر میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کو کہاں سے، دریا میں پانی نہیں ہوگا آپ پانی کہاں سے پئیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سب کو مل جل کے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے اخبار میں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ پنجاب کے وہاں کانفرنس ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھو دریا کا نام پنجاب کا دریا رکھ لیں۔ یار 100 سالہ تاریخ میں سندھو دریا ہے، انڈس ریور ہے، اس کو کیسے اس کا نام تبدیل کرتے ہیں؟ 1940 میں پری پارٹیشن ڈیز میں ایک وہاں باقاعدہ میٹنگ ہوئی، سرکاری سطح پہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو وہاں فیصلہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سندھو دریا پہ سندھ کا حق ہے، کیونکہ وہ لوور رائپیرین ہیں، آخر میں ہیں، تو جب تک ان کی پرمیشن نہیں ہوتی آپ کوئی کینال نہیں نکالیں۔ میں بیٹھا ہوں سامنے، ہمیں سائیں بھی بیٹھے ہیں، کالا باغ ڈیم کے لیے اتنا مشرف صاحب کا پریشر تھا، ہم نے کہا ہم نہیں بنانے دیں گے، کیوں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ہمیں پہلے ہی 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمیں کوٹری سے نیچے چاہیے۔ بیٹھے ہیں ہمارے حسنین صاحب، میری بہن بیٹھی ہے حمیدہ مرزا صاحبہ، پوچھیں ٹھٹا بدین سجاول میں کچھ بچے گا اگر آپ نے پانی نہیں چھوڑا نیچے؟ تو سارے کا سارا سمندر آ جائے گا، زمینیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اب داندلی کر کے جیت کے آئے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں مجھ سے یا نہیں؟ داندلی کر کے جیت کے آئے ہیں، 47 کے فارم کا کبھی ہم نے نام نہیں سنا۔ ان کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کریں؟ ان کو حق ہی نہیں پہنچتا جب ہم ان اسمبلیز کو نہیں مانتے، ہم ان کے وجود کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشامدی لوگ ہیں، وہ خوشامد کرنے وہاں آ گئے ہیں۔ اور اس میں پھر 26ویں امینڈمنٹ میں تو جوڈیشری کے لیے بہت عزت و احترام ہے، خدا کرے کہ یہ ان سب چیزوں کو سمجھیں اور اس کو نظر رکھیں اور کچھ فیصلے دیں تاکہ عوام کو انصاف ملے۔ دیکھیں نا، عوام کو انصاف کہاں سے ملتا ہے؟ جوڈیشری، کورٹوں سے انصاف ملتا ہے نا۔ اگر کوئی جیسے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مخالفوں کو بند کر رہے ہیں، پانی بند کر رہے ہیں، جھوٹے کیس کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جوڈیشری۔ اگر جوڈیشری میں بھی انصاف نہیں ملے گا تو لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کھائیں۔ اس ملک کا کیا اکنامیکل سچویشن دیکھیں، آپ کا ڈالر ہے 299 روپیز کا، پاؤنڈ ہے 375۔ افغانستان جو جنگ میں لڑا، جنگ میں رہا پتہ نہیں کتنے سال، وہاں 86 روپیز کا ڈالر ہے۔ یہ سوچیں، بنگلہ دیش ٹرمائل میں تھا، پھر بھی 85، انڈیا 84۔ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ڈالر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹکٹ لیں، وہ کریں وہ، لیکن یہ اکنامیکل سچویشن یہ ہے۔ امن امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ منارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ نند لال صاحب پوچھیں، وہ ایک بچی اغوا ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی، 13 سال کی، اور اس کے بعد لوگ مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، شکارپور، جیکب آباد، کنکوٹ، کشمور، اواڑو، سکر، ماتھلے تک کے لوگ۔ تو یہ کیا سچویشن بنا رکھی ہے؟ آپ پاکستان کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ یہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر مرتضیٰ خان پہ کوئی ظلم، زیادتی یا اس قسم کی کوئی جسمانی تشدد کیا گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ہم سب کو جیل میں ڈال دیں بھلی، لیکن یہ زیادتی ہے۔ کیا قصور کیا ہے مرتضیٰ خان نے؟ کوئی قصور تو قصور بتائیں نا اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ ان کے زمین کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا۔ مجھے بس یہی کہنا ہے، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اس طرح سے نظام نہیں چلتے، اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی۔ میں بھی چیف منسٹر رہا ہوں، فیڈرل منسٹر رہا ہوں، ہم نے تو اس طرح سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مہربانی آپ کی۔
हाणे अचो तव्हां हेॾे हेॾा हेॾा अचो हेॾो अचो ॻाल्हि साॻी आहे मां अचां थो हेॾे मां होॾे हलियो हेॾे काबिल एहतराम साईं सदरुद्दीन शाह साहब, अदीफ हमीदा मिर्ज़ा, साईं लियाकत जतोई साहब, अवां सहाफ़ी दोस्तों, साईं सरदार रहीम साहब, मुर्तज़ा ख़ान जतोई जी गिरफ़्तारी जो मुख्य मामिलो इहो आहे त दरिया बचाओ तहरीक ऐं सिंध जी अपोज़िशन ऐं सिंध जो बच्चो रोडनि ते निकिरी पियो आहे, जंहिंमें GDA ख़ुदि दरिया बचाओ कमेटीअ में हिकिड़ो सरगर्म सिंध जे सीनियर पार्लियामेंट्रियन जो वॾो केडर असां सां गॾु आहे, त दरिया ते धाड़ो आहे, कैनाल ग़ैर क़ानूनी आहिनि। जीअं जीअं इहो 3 मरहला पूरा थिया आहिनि, कराची टू बदी, हैदराबाद टू उमरकोट, सेवन टू मेहर, इहे 3 मरहला पूरा थिया आहिनि। सिंध जा लखे माण्हू उन्हनि में शामिल थिया, सॼी सिंध मुतहरिक थी आहे, त उन वक़्तु सॼी सिंध में डाकू राज ऐं धाड़ेल राज उहो तेज़ थी वियो। अगवाकारियूं, फुरियूं, माण्हुनि खे गोलियूं हण। नएं देरे जे शहर में संतोष कुमार मासूम खे गोलियूं हणी, नओं दरो सिटी जेको चवनि था बेनज़ीर जो शहर आहे बिलावल जो, उते मारिया विया। संजय कुमार कल्ह क़तल थियो आहे। कल्ह GSN महाज जी लाड़काणे में आम हड़ताल हुई, डिविज़नल हेडक्वार्टर बंदि हो, शहरी रज़ाकाराना रोडनि ते निकिरी आया। ही जीअं तारुक़ कयो आहे त सिंध जे माण्हुनि खे ख़ौफ़ज़दा कयो, उन्हनि जे मथां धाड़ेल क्रिमिनल्स हमले आवर थिया है। ये क्रिमिनल इस वजह से हमले आवर हुए ताकि लोगों का जहन डाइवर्ट हो, खौफजदा हो, लोग घरों से न निकले। और दूसरे तरफ पुलिस गर्दी वो जारी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस चोरों को मार रही है। मैं मजम्मत करता हूं कि नवाब शाह में एक जरदारी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए कत्ल किया गया, तो SP तनवीर तुनियों को हटाया गया, मगर 4 दिन लाशें पड़ी थी सांगड़ में। उस वक्त FIR क्यों नहीं काटते भाई? मुर्तज़ा खान जतोई को एक हाजिरी पे ना जाने की वजह से आप हथकड़ियां लगाकर और जाली मुकदमात पुलिस एनकाउंटर के डाल देते हैं। मौज़म खान अब्बासी पे आप नौशरो फेरोज में FIR करते हैं कि पुलिस वाले को कत्ल किया, और लाड़काना में FIR हो जाती है। मुझे रात को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। सारी अपोजिशन, वो फोर्सेस जो सिंध की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, दरियाए सिंध की बात करें, भूख और अफलास में पाकिस्तान में सिंध पहले नंबर पे, अमन अमान की बर्बादी में सिंध पहले नंबर पे, मुआशी बर्बादी है, सारी दौलत करप्शन माफिया के जरिए सिंध को जला रहे हैं बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी। तो जरदारी माफिया के जुल्म के खिलाफ बात करें तो एक इज्जतदार आदमी मुर्तज़ा खान को हथकड़ियां लगाकर लाकअप करते हैं कि ताकि वीडियो भर के ऐवान सदर भेजो, ताकि मुर्तज़ा जतोई लाकअप में बैठा है, उनको करार आ जाए। ये तुम्हारा करार और सुकून सिंध के लोग तबाह कर देंगे। ये रद्द अमल आएगा सिंध में, ये अवामी रद्द अमल आएगा। सिंध के लोग अपने दरिया, अपने साहिल, अपने वसाइल और अपनी खुशहाली और अमन अमान के मामले से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ, और GSN महाज की जानिब से दरिया बचाओ तहरीक और GDA जो भी इत्तेहाद लाएअमल बनाएगा, हम उसमें एहतजाज में होंगे, रोड बंद करेंगे, सारी सिंध में शटर डाउन होगी, और शहरों गांवों में इन चोरों के खिलाफ अवामी जो नफरत है उसका लावा फट चुका है। लोग खुद ब खुद रोड बंद कर रहे हैं, मगर इनका तरीक़ेकार ATC है। ये ATC जनरल ज़िया अयूब खान ने चलाई थी, वो रहा, मुशर्रफ ने चलाई थी, वो रहा। सारे जनरलों, लाकानूनियत फैलाने वाले गुंडों का रूह अब अगर जरदारी आसिफ में आ गया है, तो सिंध के लोग ऐसे जालिम दरिंदों और फरोने से तो हजारों साल हम लड़ते आए हैं। ये दरिंदा और जालिम हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। शिकस्त इनका मुकद्दर है, सिंध के लोगों को लाकानूनियत कबूल नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अपने दरिया, ये हमारा हक है कि सिंध के लोग अपने दरिया, अपने वसाइल पे जिंदा रहें। मैं साईं यूनुस साईं को,
چاچا صفدر عباسی صاحب جو ہمارے لیڈران ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہ اختیار ہے کہ جو فیصلہ کریں گے سندھ لبیک کہے گا. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب صحافی بھائیوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ ادھر ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں اور جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہی ہے ہماری ممبرشپ آپ کو. میں تھوڑا سا اس قسم سے بات کروں گا کہ آپ اس کو ذرا سنجیدگی سے سوچیں گے بھی اور ایک بات پوری پاکستان تک اچھی جائے گی کہ دیکھیں اگر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو جمہوریت تو پھر نام کی رہے گی. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی ان پہ جو فیصلہ کرنے کے قابل ہیں اور کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو مہربانی کر کے ان کا ڈیو شیئر بات کرنے حد تک تو دے دیا جائے. اگر یہ ڈیو شیئر بھی ہم سے چھین لیا جائے گا تو عوام کی جائز بنیادی حقوں کے تحفظ کے لیے تو پھر کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. اب اگر ناانصافی ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو اجاگر کرے, اس کو ہائی لائٹ کرے, عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ پریس کے سامنے ہم کو آنا پڑے, آپ ہماری حمایت کریں, آپ اس چیز کو اور اٹھا کے سامنے لے جائیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ریلیف ملے. اور اگر جمہوریت نہیں چلانی تو پھر تو اپوزیشن بالکل بے معنی ہے, ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. رہا سوال کہ جی ڈی اے اگر ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ سندھ میں ایک اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کردار ادا کرنے سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو حکمران ہیں اس وقت ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اب چیک اینڈ بیلنس تمام ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نوکریاں بک رہی ہیں, سندھ پبلک سروس کمیشن سے کسی کو میرٹ پہ نوکری نہیں مل رہی. لا اینڈ آرڈر بگڑ چکا ہے تو لا اینڈ آرڈر میں یہ کہا جاتا ہے تھانے بک رہے ہیں. جو وزارتیں ہیں اس میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس جمہوری سسٹم کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے عوام تک, کیونکہ جو پچھلے 17 سال میں تباہی بربادی اداروں کی ہو چکی ہے اس کو واپس بننے میں بھی پتہ نہیں کتنے برس لگیں گے. تو لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ڈی اے اپنا کردار ادا کرے گی. میں نے ابھی بھی اپنے جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹیز دوستوں سے پوچھا کہ جناب مشکل وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئے گا, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ ہے ذہن میں کہ جی ڈی اے اس وقت مشکل وقت میں تو ہم اپنا ذاتی جو ایک حیثیت ہے اس پہ واپس چلے جائیں, تو میرے بہن اور دوست جتنے بھی ہیں انہوں نے کلیئر کیا جی آخری حد تک ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. جی ڈی اے میں مرتضیٰ خان نے بھی کہا کہ ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. تو جی ڈی اے ٹوٹ نہیں رہی, البتہ اور مضبوط ہو رہی ہے. اور یہ جو سمپتی بڑھ رہی ہے جی ڈی اے کے حق میں بڑھ رہی ہے, چاہے اب آپ کسی کو گرفتار کریں, کسی پہ جھوٹے کیس بنائیں, ادھر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ڈی اے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور ایسے محسوس کریں کہ یہ پیچھے ہٹنے والا قصہ نہیں ہے, کیونکہ 2 الیکشن ہم لوگوں نے باقاعدہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم میں سب نے لڑائے اور آنے والا جو الیکشن جب بھی ہوگا اس میں بھی امید یہی ہے اور خواہش سب کی یہی ہے کہ ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. تو مرتضیٰ خان جتوئی والا کیس سارا صفدر عباسی صاحب جنرل سیکریٹری جی ڈی اے کے, انہوں نے آپ کے سامنے لیگل پوزیشن بتا دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیگل بیٹل میں ہم لیگلی آگے چلیں گے, وکیلوں کے تھرو چلیں گے, کورٹ سے ریلیو لینے کی کوشش کریں گے اور قانون کی بالادستی ہم دیکھنا چاہتے ہیں.
और कल रात को पीर साहब ने मसरूर जतोई साहब से भी बात की और उनको हिम्मत अफजाई दी कि ये सियासत में होता रहता है, मगर सिंध के ट्रेडिशन ऐसे नहीं है। अगर ये किसी लोकल सिंध के ट्रेडिशन में कभी भी ऐसा हुआ हो जैसा मुर्तज़ा खान के साथ हुआ है तो कोई तारीख़ का बता दें हिस्सा, मगर ये सिंध के अंदर ये रिवायत नहीं रही कि आप किसी ख़ानदानी आदमी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें और इस तरीके से झूठे केस बनाएं, और अगर बेल हो तो उस बेल को कैंसिल करा के उसके ऊपर नए 2 केस बनवाएं, 3 केस बनवाएं या 10 केस बनवाएं। अब वो डट के खड़े हैं, उन्होंने कह दिया जी मेरा जीना मर्दा जीडीए के साथ है, जो मर्जी मेरे साथ कर लो। तो मैं समझता हूँ इंसानी कदर को सामने लाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत पे अमल भी करें, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ के वक्त में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा अब होने लगा है। तो लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मुत्तफिक एक राय पे हैं कि हम लोग लीगल जो फोरम है उस पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपना लाए अमल करेंगे। और पीर साहब की क़यादत में 25 तारीख को एक इजलास अर्जेंट कॉल किया है, उसमें हम लोगों की मीटिंग होगी। तब तक जो फैसला कोर्टों ने करना है वो भी कर लें और कहाँ रास्ता जा रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान की जमहूरियत से मायूस हो गए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो जमहूरी निज़ाम है बिल्कुल ही किसी काबिल कबूल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सुने, आप इतना सवाल ऐसा कर गए हैं, अगर आप पीका का कानून देखें तो 47 फॉर्म वालों ने बनाया है कि आप सहाफ़ी हजरात कबूल कर रहे हैं। सवाल तो करेंगे नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो अगर आप ये समझ लें कि आपकी ज़बान बंद है, जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं और ये जमहूरियत है, तो फिर आप इस पे मुझसे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, है आप बता दें। मेरा सवाल ये है कि जीडीए के तमाम रहनुमा मौजूद हैं, जीडीए का एक अहम रहनुमा गिरफ्तार किया गया है। जीडीए की तरफ से ना कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है, सिर्फ मुज़म्मतों पे काम चलाया जा रहा है। ये कौन सा मंतक है? मेरी फिर दोबारा ये गुजारिश है कि हम यकीन करते हैं कानून की जो एक तारीख रही है, कानून रिलीफ देगा, और हम पहले कानूनी जितने भी अपने वकील हैं उनको आज़ाद छोड़ाए कि आप जाके रिलीव लेने की कोशिश करें, वो देख लें। उसके बाद देखें, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पे बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीव अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीव को तो देखें हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कदम रिलीव लेना है कानूनी तौर पे, उस पर हम अमल कर रहे हैं। सर ये बताएं कि ये जो तहरीक आपने शुरू किया, क्या ये जो मुर्तज़ा खान जतोई की जो गिरफ्तारी है उसका भी जो है नतीजा हो सकता है कि जो तहरीक आपने मेड में आपने जलसा किया, दूसरे दिन जो है मुर्तज़ा खान जतोई को गिरफ्तार कर दिया? देखिए, किसी की नीयतों पे किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर इतना ज़रूर है कि सिंध की ज़मीनें, सिंध का पानी, सिंध की आवाम का वोट, सब पे डाका लगा हुआ है। तो अब ये चीज़ अगर आप सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की असम्बलियाँ बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आप जो कह रहे हैं मुमकिन है। हो सकता है ये भी तकलीफ़ हो, मगर आदमी इस्तेमाल उधर तक होता है जहाँ तक फिर वो आदमी जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी सख्त होनी चाहिए कि वापस जब टेबल टर्न होगी तो उसको भी जवाब तलबी उससे भी फिर होगी कि ज़्यादती क्यों की गई। साहब ये बताइएगा, इमरान खान ने जेल से आर्मी चीफ को 3 कट लिखे, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नहीं मिला, अगर मिला तो हम वज़ीर-ए-आज़म को, क्या आप भी कोई कट लिखेंगे? मेरी छोटी सी सवाल की आपकी एक मायने खेज चीज़ है, मगर वो जिसने ख़त लिखा और जिसने ख़त का बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, तो इसके बाद मुझे इसके ऊपर क्या जवाब दूं मैं आपको? ने तो दे दिया खुद कि ये प्राइम मिनिस्टर पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में, तो ये
मुर्तजा खान जतोई तो अभी गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों कारकुनान इससे पहले भी गिरफ्तार होते रहे जीडीए के। आप देख लें जिनके जो है वो लोकल सतह पे कोशिश करते रहे कि अपनी जमात पे खुद करवाते रहे, और वहाँ तक जो लोग इलेक्शन में खड़े थे जीडीए से उन लोगों ने मुड़कर वहाँ पे नहीं देखा। मैं घर से प्लान करता हूँ, आपको बताऊँगा जो घर के लोग हैं वो अपनी जमात पे खुद करवा रहे हैं बेचारे, उनकी कोई वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी मुर्तजा खान जतोई साहब का मामले पे तो जीडीए की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये सारा हो गया, लेकिन जो आम कारकुनान जिस तरीके से वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, जीडीए उनके लिए क्यों खामोश है? और एक साल से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये मामला चल रहे हैं, उन गिरफ्तारी के खिलाफ आप जिसको नायब साहब कह रहे हैं, गिरफ्तारी कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ जीडीए की क़यादत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेगी? देखिए, कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो हम तो बेहतर अंदाज में यही आपके सामने गुजारिश रख रहे हैं कि हम कानूनी जितने भी दरवाजे खटका रहे हैं, रिलीफ ज़रूर मिलेगा देर सवेर, मगर ये क्लियर हो गया कि एक डिवीज़न पब्लिक के अंदर नज़र तो आ रही है। पहले तो ये होता था कि जी वन वे ट्रैफिक है, अब शुक्र करें खुदा का कि ये डिवीज़न नज़र आ रही है। और इस वक्त वो लोग जो कभी बात नहीं किया करते थे, कभी घरों से नहीं निकलते थे, वो बात भी करें, घरों से भी निकल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक मैं समझता हूँ चीज़ है जो नज़र आ रही है, आगे और बेहतर हो जाएगी। शाह साहब, 26वीं तरमीम के बाद किससे आप इंसाफ मांग रहे हैं? अदालतें तो हुक्मरानों की लोनियां बनी हुई हैं, किनसे आप इंसाफ मांग रहे हैं? कौन तवक्को, किससे आप तवक्को कर रहे हैं? अब मैं दूं कि सरदार अब्बासी साहब देना चाह रहे हैं इसको? दो मिनट में जी मैं अर्ज कर दूँ। देखिए, पीर साईं ने एक बड़े शाइस्ता अंदाज में एक पैगाम दिया है सबके लिए। ये पैगाम ये है कि जी मुर्तजा खान जतोई साहब के लिए हम लीगल रिलीफ चाहते हैं। आपने उसको इलीगल अंदाज में उनको पाबंद सर हासिल किया है, इलीगल अंदाज में आप उनको पकड़ा है। 26वीं तरमीम का मैंने आपको बताया कि 26वीं तरमीम हमने ये बात नारा दी है। हमने 8 फरवरी हम समझते हैं कि जमहूरियत की कातिल है, 26वीं तरमीम इंसाफ का कत्ल है, पीका एक्ट सहाफ़त का कत्ल है, और ये जो कैनाल का सिस्टम है ये इंसानियत का कत्ल है। साइंस यूनुस साईं ने बड़े ही, युसुद्दीन शाह साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में एक बात कही है कि जी हम चाहते हैं कि उनको लीगल रिलीफ मिले, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर उनको एक जेन्युइन लीगल रिलीफ भी अगर नहीं मिलती, कि हाई कोर्ट का डिसीजन पड़ा हुआ उनके फेवर में कि कोई केस उन पर दर्ज नहीं हो सकता हाई कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर, और आप जो है अगर उसके बाद उनको अंदर रखने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हम लोग खामोश रहेंगे? हम बिल्कुल टाइम फ्रेम दे रहे हैं आपको, आइंदा 3 दिन सिर्फ, कि मुर्तजा खान जतोई साहब को रिलीज़ होना चाहिए। और अगर नहीं होते तो जैसे साईं ने कहा कि जी पीर साहब भी फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें सारे अमल में फिर शामिल होंगे, फिर हम उसके बाद जो भी लाएअमल होगा, फिर एहतजाज भी होगा, प्रोटेस्ट भी होगा, और सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये उनको लीगल रिलीफ मिले, लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे ख्याल में सैटरडे तक हम देखना चाहेंगे कि सैटरडे तक अगर उनको ये रिलीफ नहीं मिलता, उनको नहीं बाहर निकाल जाता, तो फिर जीडीए की क़यादत इंशाअल्लाह ताला आपको हम वैसे भी सड़कों पे हैं, हम तो कई माह से सड़कों पे हैं, हम तो कई माह से जो ना हम चल रहे हैं, कराची, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, समझे ना, अपने क्या नाम मेहर तक हम पहुँच चुके हैं साईं लियाकत जतोई साहब के साथ, और आगे भी बदमनी उसके ख़िलाफ़ अब हम मार्च करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई मुर्तजा खान जतोई साहब जो नहायत ही शाइस्ता शख्सियत हैं, उनकी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं वार्न कर रहा हूँ, उनकी सेहत इतनी ठीक नहीं है, उनको हालिया दिनों में स्टेंट पड़े हैं। इससे पहले कि ये वबाल जान की हुकूमत के लिए बन जाए, उनको फ़ौरन से पेशतर रिलीज़ करना चाहिए उनको। और अगर ये नहीं होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अपनी मीटिंग भी करेंगे, और हम जो है सड़कों के ऊपर होंगे मुर्तजा खान जतोई साहब की सिर्फ रिलीज़ के लिए, बल्कि उन तमाम अवामिल, उन तमाम इशूज़ के लिए जो हमने पहले से उठाए हुए हैं। अच्छा वासिफ साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि जो कोर्ट का कोई इशू था उसमें जो है वो लियाकत जतोई साहब को गिरफ्तार किया गया। जी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जी, जतोई साहब को गिरफ्तार किया गया, तो लियाकत जतोई साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पता है, उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। उनके इस वक्त मैं आपको बताऊँ 60 बंदे इस वक्त उनके ATC के अंदर हैं, दादू के 60 बंदे नौशेर फिरोजी सी ATC के अंदर हैं। उनके 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 ऊपर जो केस चल रहा है ऑलरेडी, वो भी टारगेट है उनका।
वो कह रहे हैं कि उसमें गिरफ्तारी की गई है, कोर्ट का कोई इशू था, उन्होंने जमानत रद्द की है तो उस बिहार पे उनको गिरफ्तार किया गया। आप कह रहे हैं कि जो है वो प्रेशर है हुकूमत की जानिब से, उसमें गिरफ्तार किया गया, वज़ीर दाखिला वजाहत भी करें। दूसरा सवाल है कि कश्मीर घोटकी और जेको आवत में डाकू राज है, मासूम बच्चे जो है वो भी महफूज नहीं है। एक बाप स्कूल से बच्चे को ले आता है और उसको गोलियां करके कत्ल किया जाता है, उस पर भी आप जीडीए की कुछ जो आपके मेंबर हैं वो एहतजाज करें, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया, प्रोग्रेस आपने नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि अपना सबसे पहले तो वो जो नॉन बेलेबल वारंट है, मुर्तज़ा खान ज्योति साहब एक दिन के लिए कोर्ट नहीं गए और वो कंडोनेशन की एप्लीकेशन डाली गई जो उनकी वर्बली मंजूर हुई। उसके बाद मैंने इस आपको कहा है, मैं इस पर ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता, कोर्ट का इशू है, उसको मैनिपुलेट किया गया है। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसने मैनिपुलेट किया है, मैं इस पर आगे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उसने मैनिपुलेट किया है और ये नॉन बेलेबल वारंट निकाला गया है। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट जो होते हैं कितने लोगों के निकले हुए हैं, ये जो डाकू फिर रहे हैं, ये जो डकैत, चोर, ये अगवाकार, ये इम्प्यूनिटी के साथ इस मुल्क के अंदर फिर रहे हैं, उन पे वारंट होते हैं। वो कितने इंप्लीमेंट कराते हैं आपके लॉ मिनिस्टर साहब, कितने इंप्लीमेंट होते हैं उसके, समझे ना? इसी को आपने इंप्लीमेंट करना था। और फिर उसको, उस शख्स को जो कि एक वफाकी वजीर रहा है, जो एक सियासत में एक शराफत की अलामत है, उसको आप हथकड़ी बांध के जो ना आप लेके जाते हैं कोर्ट के अंदर, इंतहाई शर्मनाक बात है। और जहाँ तक एक मिनट, जो बात है आपने उसकी बात की, आपने जो कश्मीर कंदकोट, बिल्कुल हम लोग कई दफ़ा इसका सीरियसली नोटिस लिया है। सरदार रहीम साहब के बयानात आपके रिकॉर्ड के ऊपर हैं, इस अगवाकारी के हवाले से, कश्मीर के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल, उस हवाले से मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि ये तीनों इशूज़, करप्शन, अगवाकारी और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और कैनाल का इशू है, हम ऑलरेडी सड़कों पे इंशाअल्लाह इसको मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। और हम ये यकीन से इस वक्त आपको ये बता के जा रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में जो ना काबिल कबूल नहीं है। ये जो सूरत हाल है सिंध के अंदर है, ये बिल्कुल सिंध को मुकम्मल तबाही की तरफ लेके जा रही है। आखिरी सवाल, एहतजाज कर रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं बदमनी है, हैदराबाद में मुकला ने पहले भी एहतजाज किया, एक एसएसपी को छुट्टी पे भेजा, वो दोबारा आ गए हैं, मुकला ने दोबारा स्ट्राइक का ऐलान किया है, कल से वो जो अदालती, तो वो भी बदमनी के खिलाफ ही कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। इसको कैसे देखते हैं, जीटीए और मुकला की हिमायत का ऐलान करती है? देखिए, मैं इसको इससे देखता हूँ कि पुलिस जो है ना, अब मैं लफ्ज़ बुरा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बीटी भी कह सकता हूँ, वरना तो लफ्ज़ तो कोई और भी बहुत बुरा निकल सकता है। इस वक्त सिंध की पुलिस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक वो पीपल्स पार्टी की और जरदारी साहब की बी टीम बनी हुई है। आप एक देखें, सिर्फ यानी इससे मुनाफकत का आप अंदाज़ा लगाएंगे, कैनाल के इशू पे सबसे बड़ी मुनाफकत कि यहाँ आप एहतजाज करते हैं, उधर आपने इजाज़त दी हुई है। इस पर मुनाफकत कि आप एसपी को सिर्फ उस हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए आप एसपी को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप दोबारा उसको ला के आपका जो है वो चहीता है, तो उस चहीते को आप दोबारा ला के लाने की कोशिश करते हैं। वकला अपना इक़दाम करें, हम भी देखेंगे। उसमें जो आपने जो वकला वाली बात की, उस सारे एहतजाज के अंदर अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, सैयद जैन शाह साहब, रियाज चांडियो साहब, ये तमाम लोग उस एहतजाज में गए हैं। ये तमाम लोग या जीडीए या उनका हमारे इत्तेहादियों का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि जी कोई और लीडर भी जाए तो इंशाल्लाह वो भी जाएगा उनके एहतजाज के अंदर। तो कल इजलास हुआ हुकूमत की तरफ से, उसमें ये पैगाम दिया गया कि जो एहतजाज करके टैंकर जलाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो एक सियासी रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार किया गया। कल हुकूमती इजलास में ये आवाम को पैगाम दिया गया कि जो इस तरह के एहतजाज या टैंकर जलाएगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये किसी तौर पे किसी भी कोई ऐसी वारदात आफाक अहमद साहब ने नहीं की थी। ये डंपर का जो इशू है इसको देखना चाहिए। सबसे पहले जनाब अपने रोडों को ठीक करें ना। वो डंपर जिस रोड पे चल रहे होते हैं वो रोड पुलिस एरिया खपाई थी। फिर साहब जो तव्हां सवाल आहे त पीपल्स पार्टी अॻवाननि जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी ते उहे माण्हू तनक़ीद करे रहिया आहिनि जिन खे अवाम रद्द करे चुको आहे ऐं उन्हनि जी सियासत दफ़न थी चुकी आहे। हाणे उन्हनि खे हिन वक़्तु जेको मौक़ो मिलियो आहे उहो डंपरनि ते सियासत करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जी जेका ख़ातिर मुखालफ़नि जी माज़ी में रही आहे उहा पंहिंजे लिकाइण जे लाइ इहे बेगुनाह जेके आहिनि इहे इल्ज़ाम था लॻाइनि। इसका मैं आपको बड़ा संजीदगी के साथ जवाब ये दूंगा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और जो सरगर्म कारकुन थे वो तो रहे नहीं, एक। नंबर दो, अगर अवाम हमारे साथ नहीं है, हम तो एहतजाज में
निकल ही रहे हैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन में, अगेंस्ट निकल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, कैनाल के लिए निकल रहे हैं, ला कानूनियत के लिए निकल रहे हैं, और हम फॉर्म 47 के ऊपर निकल रहे हैं। हमारा निकलना सबूत है कि अवाम हमारे साथ है। अब ये निकले फॉर इन सब चीज़ों के हक में निकले कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पानी देना भी ठीक है, फॉर्म 47 नहीं है, हम बिल्कुल अवाम के साथ हैं, ये रस्तों पे निकले। ख़त्म हो गई बात, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है, बस।